اور یہ عموماً شاہد مہمان ہوتے ہیں لیکن میزبان ہوتے ہیں اور میں مہمان ہوتا ہوں، لیکن آج شاہد جو ہیں وہ مہمان ہیں اور میں ان کی جگہ میزبانی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شاہد یہ جو آج یہ کنونشن ہوا اور کراچی میں خاص طور پر ہوا، چونکہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس کا معاملہ تھا، یہیں سے ایک جونیئر جج گئے تھے اور چیف جسٹس کو یہاں سے لے جایا جا رہا ہے، تو یہ جو وکلا نے آج اپنی قوت کا مظاہرہ کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا پاورفل اور کتنا مؤثر ثابت ہوگا، اور کیا واقعی یہ جوڈیشل کمیشن پہ اثر انداز ہوگا اور وہ اپنے فیصلے تبدیل کر سکیں گے؟ سر دیکھیں، ویسے تو آپ استاد ہیں، مطلب آپ تو تب سے رپورٹنگ کر رہے ہیں جب ہم عدالتوں میں آئے بھی نہیں تھے، عدالتوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال یہ بڑا مشکل آپ نے ایک امتحان میں ڈالا ہے، لیکن پہلی دفعہ ایک عرصے بعد ہم نے دیکھا ہے، جیسے 2007 اور اس سے پہلے جو ایک مہم چلی چیف جسٹس کو بحالی کی، عدلیہ بحالی کی، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ وکلا ایک بار پھر متحد ہوئے ہیں، اور جس طرح دیکھا آپ نے پوری پاکستان کے وکلا اس میں شامل تھے، وکلا تنظیموں کے سربراہان شامل تھے، اور شاید ہی کوئی ایسے وکیل کی ہم نے اسپیچ سنی ہو جس میں انہوں نے کوئی 50% بھی کوئی اونچ نیچ کر کے بات کی ہو۔ 100% سب کا موقف ایک ہی ہے کہ جو طے شدہ اصول ہے، خاص طور پر ججز کی تقرری کے حوالے سے، وہ جو ہے وہ اصول طے شدہ جو ہے اس کے مطابق ہی ججز کی تقرری ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر اگر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کوئی اتار چڑھاؤ آ گیا ہے یا کوئی کرائٹیریا چینج ہو گیا ہے، وہ اب اصل کرائٹیریا ہے کیا، اس کا واضح ہونا چاہیے۔ اسی بنیاد پر، اسی بیس کو لے کر اب ہڑتال بھی کی جا رہی ہے، اور جس دن یہ جسٹس عائشہ جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی ہیں، جن کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنا تھا، اس دن یہ فیصلہ ہوگا 9 ستمبر کو، تو اس دن پورے پاکستان کے وکلا نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے، احتجاج کا، اور شاید تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا۔ ہم نے عدالتوں، ہائی کورٹ اور لوور کورٹس کو بند کرتے ہوئے تالے لگتے دیکھا وکلا کے احتجاج کی وجہ سے، لیکن کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس دن تالے لگا دیں گے، احتجاج کریں گے، دھرنا دیں گے، تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی، بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ ہم نے آج صبح ہی، جیسے آپ نے بھی دیکھا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان سے جب گفتگو ہوئی تھی، تو انہوں نے وہ معاملہ جو چیف جسٹس کو لے کے سندھ ہائی کورٹ کا مطلب ایم شیخ صاحب کو لے کے کھڑا ہوا تھا، پیدا ہوا تھا، وہ انہوں نے کافی حل کرانے کی کوشش کی ہے، جس طرح آپ بھی جانتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ یہ ساری چیزیں جو سامنے آ چکی ہیں، اب کچھ چیدہ پوائنٹس میں آپ سے لینے کی بھی کوشش کروں گا اس معاملے میں، کیونکہ یہ معاملہ جو لوگ نہیں سمجھتے، جن کا عدالتوں سے واسطہ نہیں ہے، جو قانون کو نہیں سمجھتے، تو ان کو سمجھانے کے لیے کہ بنیادی طور پر مدعا یہ شروع کہاں سے ہوا، آج پھر جو باڈی لینگویج تھی وہ کہاں لے کے جائے گی، اپنے قانون کو، اپنے عدالتی نظام کو، اپنے یہ جو لیگل سسٹم ہے اس کو کہاں لے کے جائے گی؟ دیکھیں، ہماری اٹارنی جنرل سے بھی گفتگو ہوئی اور آج ہم نے صبح سے اس کنونشن کو بھی اٹینڈ کیا۔ یہ جو تقریریں ہوئی، ان کے بارے میں اٹارنی جنرل نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک آگ لگے گی، ہمیں اس کے بعد فائر بریگیڈ لے کر نکلنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس سے پہلے کوششیں کر چکے ہیں، مفاہمتی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکل آئے کہ بینچ اور بار میں کوئی زیادہ دوری پیدا نہ ہو، تصادم نہ ہو۔ لیکن صورتحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے طور پر کتنے بھی مطمئن ہوں، اور شاید جسٹس احمد علی ایم شیخ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، شاید محمد علی مظہر کا مسئلہ ایک حل ہو گیا ہے کہ وہ تعینات ہو گئے ہیں، اب اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن جس طریقے سے اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 2022 میں تقریباً 5 ججز سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ ہوں گے اور وہاں اکوموڈیٹ کر لیا جائے گا جسٹس احمد علی ایم شیخ کو۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ وکلا کے احتجاج کو بہت نظر انداز کیا گیا، اس سے پہلے جب بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا تھا، احتجاج ہوتا تھا، تو اب وکلا اس میں زیادہ مشتعل نظر آتے ہیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ اس وقت ججوں کی تعیناتی کی بات کر رہے ہیں، بلکہ سپریم کورٹ کی جو اجارہ داری ہے اس پہ وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ سوموٹو کے اختیارات بھی چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، بینچ اور کیس لگانے کے یہ فیصلے بھی چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ بہت سارے باتیں، اور جو ہم نے یہاں لینگویج دیکھی ہے کہ ججوں کے متعلق جو ہوئی ہے، اب ہم اسے برہمی کہیں، ڈانٹ ڈپٹ کہیں، جھاڑ کہیں یا لتاڑنا کہیں، جو بھی کہیں کہ وہ بہت زیادہ جارحانہ ہمیں یہ نظر آیا کہ جو وکلا کو نظر انداز کیا گیا ہے، بینچ اور بار کو جو 2 پہیے کہا جاتا تھا، ایک پہیے کے بغیر جو گاڑی چلانے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں دوسرا پہیہ بہت ناراض نظر آتا ہے اور وہ گاڑی کو احساس دلانا چاہتا ہے کہ میرے بغیر گاڑی نہیں چلے گی۔ ایک اور چیز، نہ صرف عدالتوں کے جو فیصلے تھے، چاہے وہ ایک لیگل ایونیو تھا اسلام آباد کا، جو اس کے حوالے سے، اور بھی مختلف بحریہ ٹاؤن کے جو فیصلے تھے، اس کو نہ صرف تنقید کی گئی ہے، بلکہ اس میں گجر نالے کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک طرف ریلیف دیا جاتا ہے، دوسرے طرف جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو بے گھر کیا جاتا ہے، اس پہ تنقید کی۔ دوسری طرف یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سب سے زیادہ اگر کسی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، وہ وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ کو وہ جملے یاد ہوں گے جو ملتان بار کے صدر تھے، انہوں نے کیا کہا، اور میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ بتائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح لطیف افریدی صاحب نے ان کے اوپر تنقید کی وزیر قانون فروغ نسیم کے اوپر، وہ بھی لوگوں کو بتائیں۔ دیکھیں، وکلا کی زبان آج بہت زیادہ تیز تھی، جارحانہ تھا۔ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ جس نے فروغ نسیم کے مشورے مانے
उसकी दुनिया और आखिरत सब ख़राब हुई और उसे मुल्क की मट्टी देखना नसीब नहीं होती, इस तरह की लैंग्वेज थी। अफरीदी साहब ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने भी उनकी डिग्री और अहलियत और उनके शऊर के ऊपर एतराज़ करने की कोशिश की, लेकिन हमें इस ज़ुबान के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि जुडिशरी का अदारा कहाँ जा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है कि ख़वातीन जज का कार्ड खेला जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट पे को ये उन्होंने कहा, जो पाकिस्तान बार के सदर ने सबसे अहम बात की कि मनपसंद जजों को सीनियरिटी के असूल को वायलेट क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आज रिवील किया कि चूँकि जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा का केस की नज़र ثانی की दरख्वास्त सुनी जाएगी, उसके लिए वोट जमा किए जा रहे हैं। उनका कहना है जज तैनात नहीं किए जा रहे सुप्रीम कोर्ट में, वोट तैनात किए जा रहे हैं। उनके कहने का मकसद ये था कि नज़र ثانی में जो गिनती और इधर से उधर हो रही है उसको मजबूत किया जा रहा है, ये सब बंदी की जा रही है, ये कानूनदान और ये लोगों को इंसाफ देने के लिए जजों को अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में काजी फैज़ ईसा को जो सपोर्ट मिल रही है, जो जजों की गिनती का एक बैलेंस उनसे दूर हो गया है, जो मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ उन्होंने इल्ज़ाम चीफ जस्टिस पर लगाया। अख्तर साहब ने तो एक और बल्कि आगे बढ़ के बात की कि एक कुव्वत है जो मैनेज करती है, सियासी पार्टियों को भी मैनेज करती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी हैं, यानी कि वो मामला बहुत करीब से जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा करीब से जानते हैं। उनका इतना जारहाना रवैया था कि ना सिर्फ जुडिशरी को मैनेज किया जाता है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जुडिशरी को मैनेज किया जाता है, सियासी पार्टियों को मैनेज किया जाता है, हुकूमतों को मैनेज किया जाता है, और एक कुव्वत है जो यहाँ असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। तो ये मामला जो था एक जज की तैनाती से शायद ये आगे की तरफ निकल रहा है कि एक जज की तैनाती का मामला तो अटॉर्नी जनरल अपनी सतह पर जो सोच रहे हैं कि वो मामला हल हो गया है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर चले गए हैं, किसी वक्त पे जस्टिस अहमद अली एम शेख भी चले जाएंगे। लेकिन ये जो वकला में एक स्पिरिट आ गई है कि अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उसको कर्टेल किया जाए, उन पर कोई पाबंदी लगाया जाए और इनको कर्टेल किया जाए, ये एक बहुत तशवीशनाक बात है। और फिर जो ज़ुबान इस्तेमाल की, ये आप देखें ना, गुजर नाला की बात की है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और बहरिया टाउन और इनके ये बात की गई, तो उन्होंने तो साफ साफ इल्ज़ाम लगाया कि फैसले जो है वो मेरिट पर नहीं हो रहे, कानून के मुताबिक नहीं हो रहे हैं, पता नहीं किस बुनियाद पर हो रहे हैं। यानी कि उन्होंने 6 मरतबा जो मैंने काउंट किया, इससे ज़्यादा बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने कहा कि साकिब निसार साहब ने अपने चीफ जस्टिस के आखिरी दिन को उन्होंने इतना बावर कराया कि जिस दिन कैबिनेट उसे अगले दिन उसे रेगुलराइज करने जा रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जो बिल्डिंग को रेगुलराइज करने का फैसला किया, वो जस्टिस साकिब निसार ने अपने उस पर किया। उनके क्या मोटिव थे कि वो आखिरी फैसलों में आखिरी दिन क्या नताइज हासिल करना चाहते थे, उनकी क्या ख्वाहिश थी, उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया कि जी वो आखिरी दिन उन्होंने जो फैसला किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई बात नहीं कर रही, क्योंकि उनका कहना यह था कि उन्होंने ज़ाती पसंद नापसंद मुफाद या किसी भी वजह से किया, उस फैसले को रिविजिट होना चाहिए, उन बुनियादों को रिविजिट होना चाहिए कि जो एक ख्वाहिश पैदा करती है जजों को कि वो ये फैसले करें, ये फैसले किस जज के पास जाएंगे, कुछ जाएंगे। इन पर ये बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है और जो अदलिया पर और जो जजों पर तनकीद हुई है, जो अल्फाज चुने गए हैं, जो इंतखाब किए गए हैं, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि किसी भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के लिए किसी जमहूरी मुल्क में अदलिया जैसे अदारे पर जो इस तरीके से बदएतमादी का इजहार किया जाए तो ये बहुत तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली एम शेख साहब ने ढाक जज के तौर पर जो इनकार किया कि वो वहाँ नहीं जाएंगे, हलफ नहीं उठाएंगे, उस पर तो इन्होंने इनको वकला तंजीमों ने खराज तहसीन पेश किया कि ठीक है, अच्छा फैसला था उनका। दूसरा, जस्टिस आयशा मलिक के ऊपर खातून जज को जो कि लाहौर हाई कोर्ट की, उनको सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के ऊपर काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि इतना अच्छा फैसला है, तारीख में पहली बार खातून जज जो वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होंगी, उसके बाद इम्कान है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बने, तो वो भी मामला रुक सा गया है क्योंकि वकला ने शदीद मुखालफत की उस बात की भी। जी, उनका भी कहना है कि ये वक्त में एक कार्ड खेला गया है, जनाना कार्ड, फेमिनिज़म का कार्ड खेला गया है, क्योंकि इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट में एक खातून जज थी, जब उनके चीफ जस्टिस बनने का मौका आया या उनके सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका आया, जब तो इस्टेब्लिशमेंट ने या अदलिया ने उसमें रुकावटें खड़ी की, लेकिन जब एक वकला की तहरीक चल रही है तो एक कार्ड खेलने की कोशिश की है। उनका कहना है कि 17 में एक क्यों खातून जज हो, उनका तो कहना है कि 3, 4, 5 जजेज होनी चाहिए और हाई कोर्ट में तमाम हाई कोर्ट में ख़वातीन जजेज होनी चाहिए, इन जजेज को बढ़ाया जाए, लेकिन सीनियरिटी के रूल को वायलेट नहीं किया जाएगा। सीनियरिटी के रूल के साथ कोई और चीज़ भी अगर आप क्राइटेरिया देना चाहते हैं तो वो दिए जाएँ, लेकिन वो सीनियरिटी के असूल को वायलेट करने के लिए तैयार नहीं है। हामिद अली ख़ान, अख्तर अली साहब की तकरीर, बैरिस्टर सलाहुद्दीन की तकरीर जो थी वो बहुत जारहाना और इस मामले में लम्हा फ़िक्रिया है कि वो इस बात पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है कि 5, 7 या 17 जजेज़ अपना कोई फ़ैसला कर लें। जैसे उन्होंने कहा कि ये कोई सब्ज़ी मंडी का कोई इलेक्शन नहीं है कि एक वोट के आप फैसला कर लें। जुडिशल कमीशन में जजों की
तकरीरी का फैसला होता है तो इस पर फैसले ज़रा सोचो विचार के साथ होने चाहिए। देखिए, एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है, एक तो ये है कि मतलब जो क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही थी या क्रेडिट लिया जा रहा था जैसा जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट, तो इसका मतलब है वो मामला लटक सा जाएगा, क्योंकि एक तो गुज़श्ता रोज़ भी हमने जो बात की अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से, तो उसमें भी काफ़ी वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुखालफत भी बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। लेकिन आज जिस तरह वकला और बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो सीनियर तरीन कानूनदान हैं, जो कि मुख्तलिफ जो मुश्किल वक्त में देखा जाता था कि वो पाकिस्तान के मामलात में आगे आगे होते थे, वो पहल करते थे। लतीफ़ खोसा साहब की बात करें, हामिद खान साहब की बात, लतीफ़ अफरीदी साहब, उसके अलावा बड़े मायानाज जो वकला, अली अहमद कुर्द साहब ने बड़ी जारहाना तकरीर की, तो यानी कि सारे वकला एक बार काफ़ी मुतहद नज़र आए। अब लग रहा है कि काफ़ी मामला या तो चीफ जस्टिस को फैसला वापस लेना पड़ेगा, या फिर वही वाली बात जैसे ये जाएंगे अहमद लीम शेख साहब तो मुस्तकिल जज के तौर पर जाएंगे। शायद जहाँ तक वकला के इत्तेहाद की बात की जाए वो इतना भी आइडियल नज़र नहीं आता। लतीफ़ खोसा साहब ने जो बात की, उन्होंने मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार पर एतराज़ की कि वो वकला की बेइज्जती के मामले में एक्शन नहीं लेते, और उन्होंने कहा कि जो आने वाले इलेक्शन है उसके बाद मैं देखूंगा कि ये कैसे होता है। इसका मतलब है कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार हो सकते हैं, बार में कोई ये रोल अदा करेंगे। इसके अलावा भी पाकिस्तान बार ने भी इसकी मजम्मत की है कि जो पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी में जो किरदार अदा किया और यहाँ मुखालफत की गई जस्टिस अहमद अली एम शेख की, तो ये भी वकला इत्तेहाद पे असरअंदाज होंगे, लेकिन इसकी वजह से पीपल्स पार्टी खुद नुकसान उठा रही है ये पॉलिसी करने की वजह से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वकला की जो अक्सरियत है वो यकजान है और पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ अलहदा हो रहा है, क्योंकि सीनियरिटी की वजह से कुछ वकला यहाँ आए हैं, उनकी एक क़ुव्वत है पीपल्स पार्टी की, लेकिन आइंदा जो उसका लाहेअमल और जो तरीक़ाकार है शायद उसे बार में उन्हें नुकसान उठाना पड़े। आपका बहुत शुक्रिया। जैसे मोहम्मद अली मज़हर साहब की जब एलिवेशन थी तो पीपल्स पार्टी की जो सीनियर तरीन रहनुमा और बल्कि वज़ीर साहब एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे राजा परवेज़ अशरा साहब, उन्होंने जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उनमें उनके हक़ में फ़ैसला दिया, यानी कि वो एलिवेशन के हक़ में थे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के हम अक्सर मौक़िफ़ देखते हैं तो वो मुखालफत करती हुई नज़र आती है। ये आप दोहरा मेयार भी कह सकते हैं, तजाद भी कह सकते हैं मौक़िफ़ का। लेकिन अब आज तकरीबन जैसे ये पौने 12 बजे के करीब ये तकरीब शुरू हुई और उसके बाद 4:15 साढ़े 4 बजे तक तवील तरीन खिताबात थे, तवील तरीन जो है वो नुक्ते उठाए गए और उनके ऊपर हतमी और मुतफ़क्का फ़ैसले के साथ साथ करारदाद भी मंजूर की गई है। अब देखते हैं कि आइंदा जो इजलास होगा 26 को कन्वेंशन होना है मुल्तान में, उसके बाद फिर मज़ीद इस्लामाबाद में भी होना है, तो काफ़ी मुश्किल और काफ़ी कड़ा इम्तिहान होता हुआ नज़र आ रहा है अदलिया को लेकर, अदालती मामलात को लेकर। मज़ीद भी इस सिलसिले में अपडेट करेंगे। बहुत सारे दोस्त एतराज़ कर रहे थे चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख साहब की एलिवेशन के हवाले से। जब हम जो पॉइंट्स बताते हैं, हम पॉइंट वो बताते हैं जो मामलात डिस्कस होते हैं अदालतों में, जो जुडिशल कमीशन में डिस्कस हुए। अपनी तरफ से कोई भी अल्फाज किसी की ज़ात के लिए, किसी की शख्सियत के लिए कभी हमने अदा करने की कोशिश नहीं की। हम इन्हीं वकला के पीछे झुंड में देख रहे हैं। इसी तरह वकला का अदालतों का रोज़ सामना करते हैं, तो इसलिए हमें अल्फाज के चुनाव का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ज़ाती तौर पर हम किसी की मुखालफत नहीं करते। बहुत शुक्रिया। फिर किसी और वीक लाभ के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होता है।